So basically, in the last lecture, we have started. We have finished the topic called as one second. What was the topic that we have covered in the last topic? We have covered the abstraction part. We have covered the data independence वाला part. उसके अलावा और कुछ cover किया था. Last was the data independence, right? Data models. Data models. We have covered a topic called as data models. Okay, so data models में कितने type के data models हैं? How many data models do we have? To define a Or database schema, we have got four different types of data model. The first one is called as a entity relationship model. Okay. Second one is called as a relational model. The third one is called as object-based. object data model. The fourth one is called as, the last one is called as Semi-structured data model. semi-structured data model. So these are the different types of data models, and data models are generally used for defining what? Data models are generally used to define what? They are used to define the schema of the database. They are generally used to define the schema of the database. So database कैसे बनना है उसका schema को define करने के लिए भी they are generally the tools that are generally used to define the data, the relationship. ये सब चीज बताने के लिए हमारे पास कुछ tools होते हैं. Okay, so that is called as data models. Okay, so ये जो data models हमने पढ़ा था, उसके बाद आज जो topic पढ़ने जाएंगे, basically हमें पढ़ना तो एक specific topic है. I will just explain कौन सी topic पढ़नी है. Okay. Basically हमें ये डायग्राम समझना है. ओके, so in order to understand, is it visible all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So ये डायग्राम बेसिकली समझना है, लेकिन ये डायग्राम्स को हम कुछ पार्ट्स में समझेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट ओवर हियर, वी हैव गॉट डिफरेंट यूजर्स. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 4 यूजर्स है. ओके, सो पहले हमें यूजर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. देन वी हैव टू स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, सो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है DDL और DML. सो ये DDL और DML क्या है, एंड देन फिर ट्रांजैक्शन क्या होता है, देन थोड़ा बहुत, हाँ बस इतना. ये 3 चीजों पे अगर हमने फोकस कर लिया, उसके बाद ये डायग्राम को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा. सो ये डायग्राम जो है, दिस डायग्राम इज बेसिकली डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर. ओके, डेटाबेस का जो सिस्टम आर्किटेक्चर है, ओवरऑल आर्किटेक्चर, एंड जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. तो ये डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर अगर आपको पूछा जाए तो ये डायग्राम, ओवरऑल ये डायग्राम आपको बनाना है. ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, इट हैज बेसिकली फॉर द मोर डिविजन्स इनटू इट. सो ये अकेला 10 मार्क का पूछा जा सकता है पूरा का पूरा, या हो सकता है इसमें से पूछा जा सकता है आपको व्हाट आर द डिफरेंट यूजर दैट डेटाबेस सिस्टम हैव. तो आप डेटाबेस सिस्टम के यूजर को अगर एक्सप्लेन करना है तो सिर्फ ऊपर वाला जो मैंने सर्कल बनाया है बड़ा वाला, सो वो वाला पार्ट ही आपको सिर्फ समझाना पड़ेगा. या इसमें पूछा जा सकता है व्हाट आर एसक्यूएल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड दैट एसक्यूएल सपोर्ट्स. तो उस केस में आपको डीएमएल और डीडीएल के बारे में समझाना पड़ेगा. या डायरेक्टली 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछा सकता है व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन मैनेजर. सो ये कुछ सवाल है इसके अंदर, जिसमें हमें छोटे छोटे पहले आंसर्स को तैयार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर वी आर रेडी फॉर दैट, देन वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर बिग डायग्राम. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes. Okay. So we'll try to Yes. start. We'll just try to start with the this next topic. After data model, write down the next topic. Next topic में जो title होगा आपका, just write down the title as SQL. Okay. Write down the title as SQL. Okay. So अगर जो book maintain कर रहे हैं, please make a note of it. So SQL का full form क्या है? SQL का full form, does anybody know the full form of SQL? Structured query language. Structured query language. Okay, so the full form of SQL is structured query language, and this language that we are talking about, what is this language? Is it a programming language, or is it a database language? What it is? Database language. Database language. Okay, so write down a definition about structured query language. What is actually SQL? So SQL is nothing but it is a database language. In one liner you can write down this is a database language. Okay, so why we use this database language? Since database का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, रिट्राइव करना, तो बेसिकली ये लैंग्वेज हेल्प करेगा आपको डेटा को रिट्राइव करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा पे ऑपरेशन करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ओके, डेटा को स्टोर करने के लिए. Okay, so that is why it is called as a database language. Okay, so what is structured query language? It is nothing but it is a database language.
by the use of which we can perform certain operation on the existing database. Okay, so write down this definition. What is SQL? SQL is nothing but it is a database language. SQL is a database language by the use of which we can perform certain operations on the existing database. On the existing database. So SQL is nothing but it is a database language. Is it clear? Have you written it down? और एक बार रिपोर्ट करो ना सर. Okay, so SQL is a database language. SQL is a database language by the use of which we can perform certain operations. By the use of which we can perform certain operation on the existing database. Okay, so database language है क्यों use करते हैं? For performing operations. Okay, operation किसके ऊपर? Operation on what? On a file? No. On what? Table? Existing database. On database. Okay, on existing database. And this database should be of which kind of database? It should be a relational database. Okay, so whatever we are talking about, it should be a relational database. Relational का मतलब क्या होगा? Table के फॉर्म में होना चाहिए. Okay, it should be a relational. So अगर आपने relational model जो पढ़ा था, उस मॉडल में अगर आपने देखा होगा, so everything in relational database is stored in the form of tables. Okay, in form of rows and columns. Okay, so जो SQL आप पढ़ने जाओगे वो स्पेशल टाइप के डेटाबेस पे वर्क करेगा और वो डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस बोलेंगे. ओके, सो बेसिकली अगर वो टेबल के फॉर्म में होगा तभी उसके ऊपर जो क्वेरी लैंग्वेज जिसको जो सपोर्ट करेगा, दैट क्वेरी लैंग्वेज इज जनरली कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So what are the operation that it supports? We should know कि ये operation क्या क्या होता है. So operation is nothing but what are the operation that it can support is creating of the database. So सबसे पहले तो database बनाने के लिए support करता है ये. So creation. After creation, it helps in storing of data. Okay, so data आया, database तो हमने बना दिया. अब database को बनाने के बाद उसको store करना है data को. So storing करने के लिए. Okay, so storing of data. And this is creation of database. Okay, so there is a difference between data and database, right? You guys remember it, right? Data और database में फर्क पता है ना आपको? Data is nothing but it is a raw fact, whereas database is nothing but it is a place where data is being stored. Okay, so ये जो place जहाँ पे data को store करता है, वो storage का जो जगह है वो बनाने के लिए हम जो query language use करते हैं, that query language is nothing but structured query language. सेकेंड ऑपरेशन इज नथिंग बट जो डेटा है उसको स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर. तो ये स्टोर करने के लिए जो ऑपरेशन होगा दैट इज सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज एसक्यूएल. उसके अलावा और क्या ऑपरेशन आप कर सकते हो? द अदर ऑपरेशन इज बेसिकली यू कैन मैनिपुलेट ऑन द डेटा. ओके, सो डेटा को अगर मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट का मतलब व्हाट इज मैनिपुलेशन? Does anybody know what is manipulation? Changing. अगर डेटा को चेंज करना है, एक पहले डेटा कुछ और था, उसके अंदर अभी कुछ तब्दीली हो गई है, उसके अंदर कुछ चेंज हो गया है, तो वो चेंज करने के लिए जो अगर ऑपरेशन जो करना है आपको, वो थ्रू अ एसक्यूएल क्वेरी लिख करके आपको वो चेंज करना पड़ेगा डेटा के अंदर. ओके, तो दैट मैनिपुलेशन ऑन डेटा दैट इज आल्सो डन बाय योर डेटाबेस. ओके, उसके अलावा मैनिपुलेशन ऑन द स्कीमा या ऑल्टरिंग लिख दो, क्योंकि मैनिपुलेशन दो बार मत लिखने से अच्छा एक बार ऑल्टरिंग लिख दो. तो ऑल्टरिंग ऑफ डेटाबेस, यानी अगर मान लो डेटाबेस के अंदर कुछ तब्दीली हो गई. ओके, इफ देयर इज अ चेंज इन डेटाबेस सच एज कोई नया कॉलम ऐड कर दिया, कोई नई एट्रीब्यूट ऐड करनी है. ओके, या कोई डेटाबेस को डिलीट ही करना है. ओके, सो ये सब ऑल्टरिंग ऑफ डेटाबेस दैट इज डन बाय SQL. And lastly, you can delete the database. You can also create it, but you can also delete it. So deletion of the database is also done by the SQL language. Is it clear? So what is SQL? SQL is nothing but it is called as a database language by the use of which you can perform operations
on the existing database. ये operation क्या क्या है? The operations are basically to create a database, storing the data, manipulating of a data, altering of database and deletion of database. So these are some of the most widely used operation. तो ये operation करने के लिए हम वो एक क्वेरी लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा. क्वेरी लैंग्वेज के सपोर्ट से हम बड़े आसानी से ये सारे ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर कर सकते हैं. इज द पॉइंट क्लियर? इज इट क्लियर? Okay. So can I erase it? Can I erase it? Yes. Okay. Okay. Next topic is regarding SQL. ये जो SQL है इसको हम further और divide कर सकते हैं. We can classify it. So जो भी आपका query language है वो query language के अंदर कुछ classification. Okay, so the next is the classification of these SQL language. Though again ये SQL जो आप पढ़ रहे हो ये SQL basically वापस repeat होगा. Okay, so when you go to the module number 4 वो module number 4 में फिर से ये चीज repeat होगी. Okay, so वहाँ पे और elaborate तरीके से होगा. यहाँ पे सिर्फ short में अगर by chance पेपर में पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया जाए what is SQL, so you should know what you have to write down in SQL. Okay, so the SQL commands जो है आपके the next point that you need to know is the SQL command. Okay, so what are the SQL commands? SQL command जो हमने last time देखा था, अगर हम basically MySQL अगर हमने ओपन किया था, MySQL के अंदर हमने यूज करके कमांड यूज किया था. देयर वाज सिलेक्ट करके हमने एक कमांड यूज किया था. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल कॉल्ड एज कस्टमर. तो हमने सारे कस्टमर का लिस्ट देखा था वहां पे. ओके, so there is a command called as select, there is a command called as a show. Okay, there is a command called as use. So ये सब क्या है? These are nothing but these are called as SQL commands. Okay, so ये जो SQL commands है basically it is classified into 4 different categories. Okay, so please make a note of it. The SQL commands are generally classified into 4 different categories. The first category of SQL command is called as EDL. Okay, EDL. The second category is called as DQL. DQL. Okay. The third one is called as DML. And the last one is called as DCL. There is another command that is there, but these are generally optional या कुछ किताबों में होता है. So that is called as TCL. Okay. So you don't have to specifically यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. बाद में अगर टाइम पड़ेगा तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. Okay. Fine. So the classification of SQL command are generally classified into 4 different categories. These categories are DDL, DQL, DML, and DCL. Okay. Generally important from Viva point of view. Okay. In exam also can be asked. Okay, for 5 marks. So what is DDL? DDL is nothing but the full form of DDL is nothing but it is called as data definition language. Okay, so write down DDL is nothing but data definition language. Okay, so what is a data definition language? Data definition language is nothing but it is the command which is generally used for defining the schema of the database. Okay, so database का schema क्या है? Okay, उसके अंदर जैसे कमांड जैसे कि क्रिएट करना डेटाबेस को, डिलीट करना, ड्रॉप करना, अल्टर करना, यानी स्कीमा से रिलेटेड जो भी कमांड होगा दैट शुड बी देयर इन DDL. ओके, सो इन DDL व्हाट यू नीड टू राइट डाउन इन DDL? DDL consists of SQL commands. Write down DDL consists of SQL commands. DDL consists of SQL commands which can be used to define the database schemas. तो डेटाबेस स्कीमा को अगर आपको डिफाइन करना है तो जो कमांड जो सपोर्ट करेगी डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करने के लिए दैट कमांड विल बी कॉल्ड एज DDL. Is it clear? Is the point clear? Not sure. What is schema? Can anybody tell me what is a schema? Logical representation of data. Logical representation of a database. So अगर मैंने बोला आपको एक मॉल का अगर आपको स्कीमा बनाना है
तो इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? मॉल विल हैव अ कस्टमर, ओके। सो कस्टमर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट कस्टमर हैव? कस्टमर हैज its ID, customer can have its name, customer can have the address, customer can have its contact number, etc. Okay. उसके अलावा मॉल के अंदर there will be certain employees. Employee will have the ID, employee will have name, employee will have address, employee will have contact. Then we have another attribute called as product. Okay, so product में क्या होगा? Product will have the ID, it will have name, it will have cost. Okay, name, then it will have cost. Okay, so ये सारा आपने स्कीमा बना दिया। अब ये जो स्कीमा है, इस स्कीमा को जब हम टेबल के फॉर्म में जब क्रिएट करेंगे, जब स्कीमा को जब हमें डिफाइन करने की बारी आएगी, वो डिफाइन करने के लिए हम DDL का कमांड यूज करेंगे। सो हाउ टू डू दैट? सो विल बी यूजिंग अ कमांड कॉल्ड एज क्रिएट टेबल। ओके, सो टेबल कौन सा क्रिएट टेबल करना है आपको? द टेबल इज कॉल्ड एज कस्टमर। ओके, सो यू आर क्रिएटिंग अ टेबल कॉल्ड कस्टमर। अब इसके अंदर का डिटेल क्या क्या देना है? सो कस्टमर आईडी जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, कस्टमर आईडी। ओके, उसका डेटा टाइप क्या है? इट इज ऑफ इंटीजर। ओके, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद और क्या आपको चाहिए इसके अंदर? सो आई वांट नेम इन इट। नेम किस टाइप का होगा? तो इट इज वैर कैर। ओके, वेरिएबल कैरेक्टर, या कैर अगर आपको लिखना है वो भी आप लिख सकते हो, वैर कैर। उसके बाद आई हैव गॉट एन एड्रेस। एड्रेस के अंदर भी वी कैन हैव वैर कैर। ओके, so ये सब जो आप डिफाइन कर रहे हो, ओके, so the command that basically defines the schema, okay, the schema of database, such as command is called as create. That command is called as, that command comes under DDL. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. ओके, सो स्कीमा से हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि उसके अंदर लॉजिकल क्या क्या पॉइंट होंगे, या कौन कौन सी एंटिटी होगी, उस एंटिटी का एट्रीब्यूट क्या होगा। लेकिन उस स्कीमा को जब हम एक्चुअल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कन्वर्जन, एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ स्कीमा इनटू एक्चुअल डेटाबेस, that is done by a special command of SQL which is called as DDL. Okay, so within DDL write down the next point. Within DDL write down the next point. It simply deals with, it simply deals with description of database schema. It simply deals with description of database schema and is used to create, and is used to create and modify, and is used to create and modify the structure of, and is used to create and modify the structure of database object, the structure of database objects in the database. तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को अगर क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सब कुछ आप DDL से बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर? उसका सेकंड पॉइंट फिर से बोलो मेरे पास। Okay. It simply deals with description of database schema. It simply deals with description of database schema. What we are talking about? The DDL. Okay, so DDL basically deals with the description of database schema, and then it is used to create, and is used to create, and is used to create and modify, and is used to create and modify the structure of database objects, and is used to create and modify the structure of database objects in the database, and is used to create and modify the structure of database objects in the database. Fine? Okay, sir. Okay.
So what are the commands that it has? So we'll just list down some of the few commands. Okay, we don't have the time to discuss all the SQL right over here. Okay, we are just giving an introductory part because the first module is generally the introductory part. So पूरा का पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो कुछ कमांड्स को हम देख लेते हैं ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि क्या क्या कमांड इसके अंदर आता है. So the first command that we have to study is called as create command. Okay, तो क्रिएट कमांड क्यों यूज करते हैं? ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको बनाना है तो वो आप बड़े आसानी से क्रिएट कमांड से क्रिएट कर सकते हो. ओके, सो डेटाबेस को अगर क्रिएट करना है तो वी जनरली राइट क्रिएट डेटाबेस. ओके, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो वी जनरली राइट क्रिएट टेबल. अगर आपको व्यू करना है तो क्रिएट व्यू करते हो. फंक्शन क्रिएट करना है तो क्रिएट फंक्शन करते हो. तो जो भी डेटाबेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए वी जनरली यूज अ क्रिएट टर्म कॉल्ड एज क्रिएट. और ये जो क्रिएट है, because it is nothing but it is a database schema, because you are generally building a database schema, so that naturally it falls into which command? Will it fall in DML, will it fall in DCL, or will it fall in DDL? It will fall in DDL because it defines the overall schema of database. Is it clear? The second command that comes under DDL is called as the drop command. Drop. So जो drop command है basically ये क्या करेगा? It is generally used to delete the object. This is used for creating the object. So object को create करने के काम में आता है. Okay. So कौन कौन से object की बात कर रहे हैं हम लोग? Object किस object की बात कर रहे हैं? Object is nothing but अगर database create करना है तो वो भी आप इससे create कर सकते हो. अगर आपको टेबल क्रिएट करना है वो भी आप इससे क्रिएट कर सकते हो. तो हमने लास्ट टाइम देखा था जो क्वेरी लिखा था, दैट वाज फॉर क्रिएटिंग अ टेबल. ओके, उसके अलावा अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है आप वो इससे क्रिएट कर सकते हो. अगर आपको ट्रिगर क्रिएट करना है, ये सब क्या है फंक्शन या ट्रिगर, ये हम आगे देखेंगे. ओके, विल जस्ट लुक इट लेटर. सो ट्रिगर क्रिएट करना आप आराम से ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो. ड्रॉप क्या करेगा? इट वुड डू द वाइस वर्सा ऑफ इट. इट वुड जस्ट डू व्हाट? इट वुड डिलीट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो अगर आपको डिलीट करना है टेबल को तो आप डिलीट कर सकते हो. अगर आपको पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट करना है वो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो. किसी फंक्शन को डिलीट करना है वो बड़े आसानी से कर सकते हो. ओके, तो ये कैसा सिंटैक्स है इसका, क्या है, क्या वर्किंग है, ये सब हम मॉड्यूल नंबर 4 में देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली पहले स्कीमा बनाते कैसे. पहले स्कीमा बनाने आएगा तो फिर हमें रिलेशनल टेबल बनाने आएगा. रिलेशनल टेबल बनाने आएगा उसके बाद हमें एक डेटाबेस बनाने आएगा. सो everything has to be followed into specific step. So we cannot directly jump into directly कि कमांड कैसे लिखना है, क्या करना है. तो जस्ट ओवरव्यू देने के लिए ये कुछ कमांड जो हम DDL के अंदर लिख सकते हैं. ओके, which fall into the DDL category. थर्ड कमांड जो होगा that would fall is called as alter. So alter का मतलब बेसिकली क्या है? अगर आपको कोई चेंज करना है, जैसे कि कोई कॉलम ऐड करना है बेसिकली. ओके, कोई स्ट्रक्चर चेंज करना है डेटाबेस के अंदर, वो आप ऑल्टर कमांड से चेंज करते हो. ओके, इज इट क्लियर? तो बेसिकली जनरली यूज फॉर चेंज इन और मैनिपुलेटिंग द स्ट्रक्चर. ओके, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. इज इट क्लियर? इज दिस कमांड क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो हम डिफरेंट कैटेगरी देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज DQL. Okay, so DQL क्या होता है? DQL is nothing but the full form of DQL is data. Q stand for? Any wild guesses that comes into your mind? Q stand for? Query. So SQL का Q and यहाँ पे DQL का Q is same. Okay, so DQL is nothing but it is data query language. So अगर कोई query है आपको data के regarding, यानी जैसे कि आपको find out करना है कि आप स्टूडेंट्स में से किसका जो मार्क्स है दैट इज ग्रेटर देन 70%. अगर ये क्वेरी है आपकी, ओके, एज अ टीचर आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 70% मार्क्स. सो ये क्वेरी करने के लिए मुझे जो कमांड यूज करना पड़ेगा वो कमांड विल फॉल इन DQL. इट विल नॉट फॉल इन DDL, क्योंकि DDL में तो हमने डिफाइन किया था उसके डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, उसको डिलीट कैसे करना है. ये सब डेफिनेशन जो है, स्कीमा का डेफिनेशन जो है, ये सब कुछ DDL में जाएगा. DQL में क्या आएगा? DQL में कमांड आएंगे जो हमें हेल्प करेंगे ताकि हम डेटा के बारे में जान सके. उनका कुछ भी क्वेरी होगा उसका सोल्यूशन मुझे DQL देगा. ओके, सो इफ आई हैव एनी डाउट, ओके, जैसे कि अगर कोई कंपनी में जाते हो या कोई हॉस्पिटल में जाते हो या कॉलेज में आप जाते हो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि यार ये कॉलेज का
ये डिपार्टमेंट किधर है या वो डिपार्टमेंट किधर है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली एक हेल्प डेस्क आपको इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। सो ओवर हियर अगर कोई कमांड जो आपको डेटा के बारे में कुछ भी क्वेरी अगर आपको होगा, वो सॉल्व करने के लिए जो क्वेरी जो कमांड यूज होगा which will help you to solve your queries, that command will fall in the DQL. Is it clear? Yes, sir. Okay, so the one liner that you can write down, what is DQL? DQL is nothing but it is a command which performs. It is a command which is used to perform queries on data. Okay, it is used to perform queries on data. Okay, so DQL is nothing but it is a command which performs queries on data. तो ऐसा कोई देखा है आपने which perform queries on data? Anything that you have seen? ऐसा कुछ कमांड हमने देखा था? I will just try to open the software. Okay, so फटाफट दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा थियरी बताने में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे. So बेटर है कि हम एक सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं, SQL, MySQL. Okay, so I'll just open the workbench. Is it visible, guys? Yes, sir. Okay. So basically अगर हमने लास्ट टाइम जो क्वेरी लिखा था use, okay, या show या select, okay, इसमें से कौन सी ऐसी क्वेरी है जो आपका डाउट सॉल्व कर रही है? Which instruction या which line is basically solving your doubt? Use, I'm using a database, so it is not solving my problem. Show, it will just show me the different tables. Select, it will select all the customers from customer. So अगर मुझे कस्टमर की लिस्ट चाहिए तो मैं इसको क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे सारे के सारे कस्टमर की लिस्ट मुझे रन करके देगा. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जो सिलेक्ट क्वेरी है, द सिलेक्ट लाइन जो है या सिलेक्ट कमांड जो है, इट बेसिकली हेल्प्स मी टू राइट डाउन द डिफरेंट क्वेरीज. ओके, इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Okay, so that is what I want to just specify. So इस particular point पे यहाँ पे तो जो आपका DQL है, DQL is nothing but it performs queries on the data. Okay, these are the commands which perform queries on the data. So ये query क्या होगा? These queries are generally जो इसका जो example है, that is generally the select query. Okay, एक ही क्वेरी, एक ही जनरली जो कमांड है वो जनरली सीधा इसी के अंदर फॉलो करता है और कोई कमांड इसके अंदर नहीं है. ओके, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, और सबसे ज्यादा अगर कोई यूज करना है आपको कोई भी क्वेरी लिखने के लिए तो जनरली इट इज कॉल्ड एज सिलेक्ट क्वेरी. तो सिलेक्ट क्वेरी इज नथिंग बट इट इज अ क्वेरी व्हिच हेल्प्स इन गिविंग द रिप्लाई टू योर रिस्पेक्टिव क्वेरी. सिलेक्ट क्वेरी इज नथिंग बट Select query is nothing but it is a query which helps in giving the reply, to the query onto the data. Is DQL clear to you? DQL समझ में आ गया? हाँ सर. तो DQL क्यों यूज करते हैं? DQL जनरली अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा, क्वेरी का मतलब क्या होता है? सवाल. ओके, सो अगर आपको कोई भी सवाल होगा डेटा के ऊपर, वो सवाल अगर आपको पूछना होगा तो आप DQL कमांड के थ्रू पूछोगे, एंड जनरली दैट कमांड इज कॉल्ड एज सिलेक्ट कमांड. ओके, सो सिलेक्ट यूज करके, जैसे मुझे एक फाइंड करना है सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर करके क्लॉज मैं यूज करूंगा, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70. तो अगर मैंने ये क्लॉज यूज कर दिया तो मुझे उन्हीं स्टूडेंट का नाम दिखेगा जिसमें स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा वो अगर 70% के ऊपर होगा. तो सो बेसिकली मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि मुझे फाइंड आउट करना है वो स्टूडेंट जो 70% के ऊपर है. तो वो मेरे को सिलेक्ट क्वेरी से मिल गया. फिर मान लो मेरे को फाइंड आउट करना है कस्टमर,
जिनका जो एक्सपेंस है या जिनका ट्रांजैक्शन जो है वो 5,000 रुपए के ऊपर उन्होंने खर्च किया है एक बार शॉपिंग करने में. सो आई विल डू व्हाट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर the purchase is greater than equal to 5,000. अगर परचेज करके कोई टेबल होगा जो रिकॉर्ड रख रहा होगा कि कितने का परचेज कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्वेरी लिख सकूंगा. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes. So the next type of command that is supported by the query language or SQL is called as DML. Okay, it is one of the most important query. Okay, so the next command is called as DML, and the full form is data manipulation language. Okay, so please make a note of it. DML stands for data manipulation language. So what is data manipulation language? यानी basically data को अगर आपको manipulate करना है यानी चेंज करना है या डिलीट करना है या अपडेट करना है, यानी डेटा के साथ जो भी खिलवाड़ करना है आपको. ओके, सो वो बेसिकली बड़े आसानी से आप डीएमएल के साथ कर सकते हैं. ओके, इससे पहले जो डीडीएल था वो डीडीएल हमने स्कीमा के साथ खिलवाड़ किया था. ओके, यानी टेबल के अंदर कॉलम ऐड करना है. ओके, नया टेबल ऐड करना है या टेबल को डिलीट करना है या डेटाबेस क्रिएट करना है, नया डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस को उड़ाना है, रिलेशन डिफाइन करना है, ये सब कुछ हमने कहाँ पे डिफाइन किया था? डीडीएल में. ओके, यहाँ पे जब हम बात करेंगे हम डेटा की बात करेंगे. ओके, ना कि डेटाबेस की बात करेंगे. सो यहाँ पे भी डिलीट होगा लेकिन डेटाबेस डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे डेटा डिलीट होगा. यहाँ पे भी इंसर्ट होगा या क्रिएट होगा, लेकिन वो क्रिएशन वहाँ पे डेटाबेस हो रहा था, यहाँ पे इंसर्ट क्या करोगे? डेटा को इंसर्ट करोगे. सो यू आर पुटिंग अ डेटा इनटू इट. Okay, so whatever you're talking about over here is called as data. Is it clear? Is the point clear over here? DML समझ में आया? Is DML clear to you? Yes, sir. Okay, so in one liner, what should be written down in DML? So please make a note of it. एक लाइन में लिख के लो. So DML includes the SQL commands. DML includes the SQL commands. DML includes the SQL command that deals with manipulation of data present in the database. That deals with manipulation of data present in the database. तो डेटाबेस जो है आपका, उसके अंदर जो डेटा प्रेजेंट होगा उस डेटा के ऊपर जो भी मैनिपुलेशन करना है, जो कमांड सपोर्ट करता है उस डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए वो कमांड को हम डीएमएल कमांड्स बोलेंगे. ओके, इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द कमांड्स दैट आर जनरली देयर? So we'll just look at some of the commands. So one of the first command that we use is called as insert command. Okay, so insert command is basically used for inserting data into a table या inserting data into a database. So हम लिखेंगे command जैसे मान लो एक नया student add हुआ, okay, in your second year. तो the नया student अगर add हुआ तो क्या करेंगे? Insert into, okay, the command is insert into. टेबल का नाम हमें देना पड़ेगा. सो टेबल का नाम लेट्स से SEIT नाम का एक टेबल है. सो इंसर्ट इनटू SEIT. ओके, ब्रैकेट के अंदर हम उसका आईडी पहला, क्योंकि अगर टेबल के अंदर मान लो पहला जो है आपका, लेट्स अज्यूम कि SEIT करके एक टेबल है, उस टेबल के अंदर द फर्स्ट कॉलम इट हैज इज कॉल्ड एज ID, द सेकंड कॉलम इज कॉल्ड एज नेम, द थर्ड कॉलम इज कॉल्ड एज एड्रेस. ये तीन डेटा आप बेसिकली SEIT में स्टोर कर रहे हो. ओके, सो हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू जो कमांड होगा, द कमांड दैट वी राइट इन जो SQL के अंदर जो हमने अभी देखा था कि कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब आगे की बात है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वरना पूरा वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है. सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, बीच बीच में एक पॉइंट डाल रहा हूँ ताकि हम जब नेक्स्ट पॉइंट पे जब जाएंगे या कभी उधर पहुंचेंगे तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत आपको ज्यादा आसानी हो समझने के लिए. तो इंसर्ट क्वेरी अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू द टेबल नेम इज SEIT and within bracket I will put the values into it. So तीन वैल्यू हमें पुट करनी है. तो वैल्यू होगी 1 2 3, ओके, ABC एंड XYZ. इसका मतलब क्या है? वो जो नया बंदा है उसका जो रोल नंबर है दैट इज 1 2 3, उसका नाम इज ABC एंड उसका एड्रेस इज XYZ.
तो जो टेबल के अंदर ये जो वैल्यू है यहाँ पे बड़े आसानी से इसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेरी। तो 1 2 3 इसके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर ABC आ जाएगा नेम पे और यहाँ पे XYZ ऐड हो जाएगा उसके रोज के अंदर। इज इट क्लियर? So that is done with the help of insert query. So insert query is doing what? It is manipulating. Manipulating का मतलब क्या है? It is putting the data, यानी data को insert कर रहा है into the table. Okay, so whatever operation which can be performed onto the data, such type of command basically falls under the category called as DML. So one of the most important command that we will be seeing is called as insert. समझ में आ गया insert? Is insert clear to you? Yes, sir. Okay. Second query that comes under the DML is called as update. Okay. So update मतलब मान लो अगर वो बच्चे ने बोला यार मेरा नाम ABC नहीं है, मेरा नाम जो है it is PQR. Okay. So I will write down again update into table. उसके बाद रोल नंबर दे दूंगा मैं उसका, ABC की जगह पे मैं सिर्फ क्या कर दूंगा यहाँ पे PQR लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा ABC को यहाँ से इरेज करेगा और यहाँ पे PQR डाल देगा। ओके सिर्फ क्या चेंज करना था मुझे, इंसर्ट की जगह पे मैंने अपडेट करना, अपडेट क्वेरी लिख दूंगा। ओके सिर्फ अपडेट वहां पे कमांड लिख दूंगा तो ये काम हो जाएगा मेरा। सो अपडेट विल डू व्हाट, इट विल अपडेट द रिस्पेक्टिव डेटा। ओके सो ये क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है बेसिकली, इट इज प्लेइंग विद द डेटा, इट इज नॉट प्लेइंग विद द स्कीमा बट इट इज अपडेटिंग द डेटा। सो नेचुरली ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, विल इट फॉल इन DQL? इज इट प्रोवाइडिंग एनी क्वेरी टू योर, इज इट प्रोवाइडिंग एनी आंसर टू योर क्वेरी? क्या कोई सवाल का जवाब दे रहा है ये? नहीं। क्या ये स्कीमा को बदल रहा है? नहीं। क्या ये डेटा को बदल रहा है? इज इट चेंजिंग द डेटा? Yes. यस। so that is why it will fall under which category, DQL, DML या DDL? किसमें फॉल करेगा ये अपडेट क्वेरी? DML. DML। is it clear? next important query is called as delete. ओके सो ये सेम डिलीट जो था वो हम डिलीट DML में भी आता है, यही डिलीट हम चाहे तो इसको इसके अंदर भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर हमने आगे लेट्स से मुझे डिलीट करना है टेबल, तो टेबल का नाम दे दिया, तो अगर डिलीट टेबल कर दिया मैंने तो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ DDL। ओके आई एम डिलीटिंग द ओवरऑल स्कीमा। Whereas अगर मैं डेटा को सिर्फ डिलीट करूंगा, जैसे कि अगर मान लो मुझे डिलीट करना है ये 1 2 3 PQR और XYZ, ये पूरे बंदे को इसने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो मुझे इसको डिलीट करना है। सो इफ आई राइट डिलीट, ओके डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम इज SCIT, ओके और ये मैंने डेटा डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये पूरे डेटा को डिलीट कर देगा। बराबर। तो ये जो है यहाँ पे जो है डेटा को डिलीट करे, सो उस टाइम पे जो डिलीट क्वेरी होगा, डिलीट कमांड जो होगा आपका, दैट डिलीट कमांड विल फॉल अंडर द DML कैटेगरी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So these are called as DML, DML instructions, DML commands. Next जो है the last one of the structured query language, that is called as, what is the last one? The last category is called as DCL. DCL. So DCL का full form is data control language. Okay, so write down the full form of DCL. DCL stand for data control language. So what is data control language generally used? So it deals with all the commands that gives you two things. Okay, one is revoking and granting of permission. दो चीज देगा, एक तो revoke देगा and second is called as granting. Revoke का मतलब छीन लेना और grant मतलब दे देना। तो कोई भी परमिशन, यानी बेसिकली कोई भी अगर आपको एक्सेस देना है, so एक्सेस देने के लिए we generally use the data control language. Okay, so एक्सेस देने के लिए बेसिकली मतलब अगर मान लो एज अ MIS, अगर आप MIS पे जाते हो, MIS पे बेसिकली आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको आपका रोल नंबर देखने को मिलता है, आपको आपका नाम देखने मिलता है, ओके उसके बाद आपको आपका मार्क्स देखने मिलता है, ओके आपको अपना अटेंडेंस देखने मिलता है, ओके ये आपको एक्सेस है। अगर मान लो अगर आपको एक एक्सेस मिल गया जहाँ पे आप अटेंडेंस अपडेट कर सको, ओके सो यू हैव गॉट अ एक्सेस ऑफ अपडेटिंग द अटेंडेंस। जनरली यू डोंट हैव दैट एक्सेस बट वी हैव द एक्सेस। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट एक्सेस, अपडेट अटेंडेंस का तो एक ऑप्शन है,
बराबर ना, बट इसका ग्रांट आपको नहीं है। ओके, सो अगर किसी ने अगर आपको ये ग्रांट दे दिया तो क्या होगा, ये जो आप अटेंडेंस है वो आप बड़े आसानी से उसको अपडेट कर पाओगे, अपने खुद का अटेंडेंस आप अपडेट कर पाओगे। सो दैट generally grant is not given to you, okay, it has been revoked to you, that grant is given to the faculty. So ये जो है परमिशन किसी को देना, एक्सेस किसी को देना, that giving of permission, that taking of the permission, that is done with the special command. Two special commands are there. One is called as a revoke command and other is called as a grant command. And these two commands basically fall under the category called as DCL. Is it clear? Yes, sir. So write down in one line. It includes commands. It includes commands. Include commands like grant and revoke. It includes commands like grant and revoke, which deals with rights, which deals with rights, comma permission, rights, comma permission of the database system, of the database system. So whether you have got the rights to access it or you don't have the right or you don't have the permission to access it, that permission is being decided or that right is given by the command called as revoke and grant. Okay, and naturally since it gives you that, so it will fall into the category called as DCL. So it does not identify the schema, it does not manipulate the data, it does not uh, give you the answer to any query, but it will just help you in controlling your data. Okay, so data को अगर छुपाना है, हाइड करना है या किसी से किसी को नहीं दिखाना है, तो ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे वो परमिशन छीनना पड़ेगा, उससे वो डेटा को हाइड करना पड़ेगा. ओके, so that can be done with the help of revoking and grant command. Is it clear? Yes, sir. Okay. So that is the first topic that I want to cover for today's lecture. Okay, so what is the time exactly? Can anybody tell me what is the exact time right now? 11:43. 43. 11:43. So we have got 15 more minutes. So we'll just write down the next topic. So I'll be deleting. Can I erase it? Yes, sir. Okay. So write down the next topic. The next topic is called as user in DBMS. User in DBMS. So DBMS जो software है, what is the full form of DBMS? Full form of DBMS is database management system. And database management system is nothing but it is a software which is basically used for creating a database, and database is nothing but it is a place where you can store the data. So DBMS is basically nothing but it is a software which helps you to store your data, to retrieve your data, to delete the data, to update the data, to manipulate the data, etc. Okay, so ये जो DBMS का software है, okay, so the DBMS software that you have, that DBMS software will have multiple supports. Okay, so ये जो DBMS software है या जो आपका database है, उस database के अंदर there will be multiple users. जनरली जो कैटेगरी है उसके अंदर 4 कैटेगरी है, उसके अलावा बहुत सारे बुक्स में 5 भी होती है, 6 भी होती है, 7 भी होती है, बट मोस्ट वाइडली दीज आर द 4 जनरल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजर्स. ओके, यूजर की कैटेगरी है. ओके, तो कौन कौन से यूजर है? तो फर्स्ट यूजर दैट वी हैव इज कॉल्ड एज द नाइव यूजर, NAIVE, नाइव यूजर. सो नाइव यूजर का मतलब क्या है? ऐसे यूजर जिनको कुछ पता नहीं है बट फिर भी डेटाबेस को यूज कर लेते हैं बड़े आसानी से. दोज आर कॉल्ड एज नाइव यूजर. और डिटेल में देखेंगे हम, बस सिर्फ जस्ट व्हाइल राइटिंग इट डाउन एंड एक्सप्लेनिंग इट. Next is we have got the application programmer. Okay, so there are some users who just write down the application program. और ये application program जो आप लिखते हो, जैसे कि जावा में लिखते हो, ओके, या सी में लिखो या C++ में लिखो, तो ये जो प्रोग्रामर जो होते हैं, जो ये प्रोग्राम को लिखते हैं, उनको वो भी एक DBMS के यूजर होते हैं. ओके, सो दे यूज द DBMS in order to give support to their respective application program. तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर एक यूजर हो गया. देन वी हैव द थर्ड यूजर कॉल्ड एज सोफिस्टिकेटेड यूजर.
सोफिस्टिकेटेड यूजर का मतलब क्या होता है? ऐसे यूजर जो जिनको बेसिकली डे टू डे डेटा से काम नहीं होता, उनको डेटा से इंफॉर्मेशन को अगर माइंड करना है या डेटा को एनालाइज करना है, ओके। मतलब पिछले 5 साल में अगर किसी को मान लो निकालना है ये रिकॉर्ड की आईटी में कितने लोग फेल होते हैं, ओके, व्हाट इज बेसिकली फेलियर रेट ऑफ आईटी, ओके, या पासिंग का रेट क्या है या प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है आईटी में पिछले 5 साल का। तो हम पिछले 5 साल के डेटा को निकालेंगे, जो जो प्लेस हुए थे उनका नंबर निकालेंगे और उसका एक एवरेज निकालेंगे, और उससे मुझे पता चल पाएगा कि अगर कोई भी अगर एडमिशन लेने के लिए आता है तो वो उसको ये डेटा दिखाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सी ब्रांच में देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब। So by looking at that table, yeah, mechanical generally they get less job. Okay, EXTC generally have very less job. Even though they get the job, their chances of getting the job at higher salary is very less. Whereas IT generally has a higher probability of getting a job. Whereas the salary they generally gets are generally higher than other branches. So ये data कहाँ से आया? It came from because of the data जो sophisticated user use करके data को generate करता है. Okay, so ये क्या है थोड़ा और डिटेल में हम आगे देखेंगे. The last one of the most important user and generally एक स्पेशल टॉपिक है इसके लिए, that person is called as database administrator. Okay, so the last user is called as or the super user basically, उसको हम बोलेंगे database administrator. So administrator, database administrator जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंसिपल होता है, एक सीईओ होता है, whereas over here the DBMS में जो इसका जो सुपर यूजर होगा, that person will be called as a database administrator. In short, we can call it as a DBA. Okay, उसको शॉर्ट में DBA में भी बोला जा सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DBA के ऊपर. पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल में लगभग हर 3 से 4 बार ये पेपर में आ चुका है. What is who is DBA? What are the roles of DBA? Okay, so DBA कौन है और उसका क्या क्या रोल है वो आपको डिफाइन करना होता है. जनरली 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 10 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये. ओके, So before understanding DBA या DBA का रोल क्या क्या है समझने के लिए हमें पहले एक्चुअली यूजर्स को समझना पड़ेगा कि कितने यूजर है, और आपको फिर बताना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो. ओके, विल लुक एट इनटू द डिफरेंट सिनेरियोस. वो सिनेरियो में फिर आपको बताना होगा कि वो किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं. फाइन, समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so basically we have 4 different types of user. The first user is called as a naive user. The second user is called as an application programmer. The third one is called as sophisticated user. The fourth one is called as a database administrator. इसके अलावा अगर बाई चांस अगर आप टेकमैक्स खोलते हो या ऑनलाइन अगर कहीं देखते हो तो उसके अलावा भी कुछ यूजर होते हैं, बट दैट यूजर आर जनरली अगर आप कोड जो आपका रेफरेंस बुक है उसको फॉलो करते हैं तो उसके अंदर 4 ही है. सो बेसिकली वी हैव टू स्टडी ओनली 4. उसके अलावा अगर देखा जाए देयर इज अ ऑनलाइन यूजर. अगर आप ऑनलाइन पे अगर आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो उसके अंदर जो होगा वो ऑनलाइन यूजर हो जाएगा. फिर एक हो जाएगा व्हिच इज data unsophisticated user. So there are different users as per the different books that they are have, but the most common अगर सारे बुक में अगर कॉमन देखोगे there are only 4 different types of users that you have. तो ये 4 ही पढ़ो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, नेचुरली वो कहीं ना कहीं इसमें ही फिट हो जाता है. Fine. So the first category of user is called as a naive user. So naive user basically क्या होता है? These are the users who are like जिनको सिर्फ पैरामीटर डालने का काम है. ओके, जैसे कि अगर आप यूजर आईडी या पासवर्ड अगर आपको डालना है, ओके, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन जैसे जीमेल अगर आपने ओपन किया तो जीमेल को अगर आपने ओपन किया तो उसके अंदर आपको एक यूजर आईडी डालने बोलेगा, उसके बाद आपको पासवर्ड डालने बोलेगा आपको, और आपको सबमिट पे क्लिक करने बोलेगा. आपने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, सबमिट पे क्लिक किया. सबमिट पे क्लिक करते ही जितने भी आपके जीमेल के जितने भी ईमेल आए थे आपको इनबॉक्स में या सेंड जो आपने किए होंगे वो सारा का सारा एनलिस्ट हो जाता है आपके सामने. ओके, सो आप एज अ यूजर डू यू नो वेयर इज योर एक्चुअली डेटाबेस स्टोर? डू यू गाइस नो जीमेल का एक्चुअली योर डेटा कहाँ पे स्टोर है? वेदर इट इज देयर इन मुंबई में कहीं है, या दिल्ली में है, या चेन्नई में है, या यूएस में है, या जापान में है, कहाँ पे है पता है आपको? वेयर इज योर एक्चुअल डेटाबेस? योर जो आपका डेटा है, जो एक्चुअल मेल आया है वो कहाँ पे स्टोर है, ये एग्जैक्टली आपको पता है? डू यू नो इट? नो. So in that case generally you will be the naive user. Okay, so you do not know where is the data, where is the database is actually being stored, data आ कहाँ से रहा है, but still you are a frequent user. Okay, so still आप डेटा को यूज करते हो, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज करते हो. ओके, डेटाबेस के साथ आप इंटरेक्ट करते हो बिकॉज आपका इनबॉक्स तो आपको दिख रहा है वहाँ पे,
आपको डेटा तो व्यू हो रहा है, लेकिन वो कहाँ पे स्टोर है उसके बारे में आपको पता नहीं है। ओके, सो यूर नाइव, नाइव का मतलब बेसिकली क्या होता है, मासूम। ओके, सो आप एक मासूम से यूजर हो, आपको पता है आप डेटा को यूज कर पा रहे हो, बट वो कहाँ से है क्या नहीं है, ये सब आपको नहीं पता। Okay, so your view is very small. Okay, so you're just viewing what is important to you, you're not viewing where the data is being stored, ये data कैसे कैसे join होते हुए कहाँ से आ रहा है। okay, एग्रीगेट हो रहा है या किसी फिजिकल कॉपी से आ रहा है या किसी मिरर कॉपी से आ रहा है या कहीं बैकअप है उस बैकअप से आ रहा है, हो सकता है डेटाबेस आपका जो एक्चुअल डेटा था वहां से नहीं आ रहा है, हो सकता है किसी मिरर कॉपी से आ रहा है। तो ये सब आपको कुछ पता नहीं, इससे कुछ आपका लेना देना नहीं। आपका लेना देना क्या है, बिकॉज आप एक मासूम से यूजर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा से लेना देना है। तो डेटा जो आपका आएगा उसी से आपको मतलब है, बाकी कैसे आना है क्या आना है वो हमारा देखना नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, Is it sir. clear? Okay, so can you write down in your own word or do you need me to dictate it? Dictate करना है या अपने वर्ड में लिख सकते हो? What do you want me to do? Or do you want me to provide this slide? बाद में मेरे पास जो स्लाइड बने हुए हैं उसके हिसाब से स्लाइड दे दूं या डिक्टेट कराऊं? So slides. Okay, so I'll provide you this slide. मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं, इसका कुछ कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। Okay, I also provided the book. Have you checked out the book? Yes, बुक sir. मिला आपको? बुक है ना, सबने देख लिया ना बुक्स? ओके, एंड आल्सो प्रोवाइडेड द रिटन नोट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो अगर किसी स्टूडेंट का अगर आपको रिटन नोट्स में फॉलो करना है तो वो आप वहां से बड़े आसानी से देख सकते हैं। सो नाइव यूजर जनरली इफ आई जस्ट रीड इट डाउन, नाइव यूजर क्या है, या अगर मैं उसको इंग्लिश में अगर बोलना चाहूँ, अगर आपको कभी टाइम मिले इस वीडियो को पॉज करके अगर आपको लिखना है या नोट्स अगर आपको बाद में बनाना है, सो यू कैन डू दैट। So naive user are generally, these are called as parametric end user. Okay, so what is a naive user? These are parametric end user. Parametric का मतलब जो पैरामीटर आप प्रोवाइड करते हो। ओके, सो जैसे यूजर आईडी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो या यूजर नेम आप प्रोवाइड कर रहे हो, साथ में आप पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हो। सो व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इज basically you're providing a parameter. So these are generally called as a parametric end user. Okay, so they are generally a parametric end user. They are basically unsophisticated user. उनको मतलब basically वो sophisticated नहीं है, उनको ज्यादा पढ़े लिखे या प्रोग्रामिंग की कुछ नॉलेज नहीं है। ओके, and they are generally use database application. वो database application को use करते हैं अपनी daily life में, but they do not have any knowledge regarding the database. So such a user generally falls under the naive user. Is it clear? Yes, sir. Okay. The second category of the user is called as application programmer. Okay, so application programmer क्या होता है, ये ऐसे user होते हैं। Okay, these are the user. The second category of the user are the user who basically when the time is getting over ना, so do inform me. Okay, what is the time right now? 11:53. Okay. So application programmer क्या होते हैं, ये application programmer basically they are the person who basically programs the application, they build the application. Okay, so building of the application, अगर कोई मुझे एक application बनाना है तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे को लेट्स से कोई एक ईमेल सर्विस बनानी है, या लेट्स से मेरे को कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट बनानी है। ओके, तो कोई भी वेबसाइट अगर मैं बनाऊंगा या कोई भी एक एप्लीकेशन बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा। राइट, सो आई विल मेक अ फॉर्म। वो फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यूजर आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, सबमिट करूंगा। ये सबमिट करने के बाद क्या होगा, इस सबमिट के पीछे एक कुछ लिखा होगा। राइट, कुछ बिजनेस लॉजिक लिखा होगा। इट वुड चेक user ID from the database, it would check the password from the database. अगर वो user ID password match होगा तभी वो next page पे जाएगा, तभी वो next page पे जाएगा। नहीं ओके फाइन। सो यूजर आईडी हुआ, पासवर्ड हुआ, उसके पीछे अगर कोई बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक इज एज इन अगर वो यूजर आईडी और वो पासवर्ड अगर डेटाबेस से मैच होगा देन ओनली इट विल गो टू द नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म में क्या होगा, अगर सोशल मीडिया अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे लिखा रहता है वेलकम, जो भी आपका नाम होगा। ओके, सो वेलकम, वी जनरली राइट इट यूजर, वेलकम यूजर। उसके बाद में यहाँ पे आपका फोटोग्राफ होगा, ये फोटोग्राफ आपके डेटाबेस आया होगा। उसके बाद आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा या स्टेटस होगा, आपके फ्रेंड का स्टेटस होगा, आपके कुछ फ्रेंड के फोटोग्राफ्स होंगे जो कि आपके डेटाबेस आए होंगे, ये सब वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, सो वॉट एवर इज देयर, वॉट एवर यू हैव बिल्ड इन दिस टू फॉर्म, इसके लिए आपने कुछ प्रोग्राम लिखा होगा। ओके,
So basically you're a application program. Application program वही लिख सकता है who has the knowledge of database, बराबर ना? So अगर मुझे पता नहीं कि database में क्या क्या data store है, तो मैं वो दिखा कैसे पाऊंगा? How can I show it? यहाँ पे कोई यूजर को, so ये यूजर मुझे पता होगा कि डेटाबेस से ये डेटा आ जाएगा मुझे, या ये फोटो कैसे दिखा पाऊंगा? मुझे पता है डेटाबेस में ये डेटा स्टोर है, मुझे स्टेटस कैसे पता? बिकॉज आई नो कि इस डेटाबेस में यहाँ पे ये स्टेटस स्टोर है. तो application programmer is also one of the user of database management system. Okay, so how it uses? It write down the application program. That application program interact with database management system. Is it clear? And application program are generally written down. Application program किस में लिखे जाते हैं? These are generally written down in Java. Okay, these are generally written down in C++. These are generally written down in Fortran. Okay, Pascal. बहुत सारे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, Python, etc. Is it clear? So who is an application programmer? Application programmer is nothing but it is a user who basically write down the application. Okay, so this user is also the user of our database management system. Okay, how it uses it? Because the application programs write the program for accessing the database, so he should have a knowledge of the database. He should be using the database. So basically it uses the database through the application. Is it clear? समझ में आया? Yes. Okay, so application programmer का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोग्रामर है जो एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा है. वो एप्लीकेशन बिल्ड जो आप कर रहे हो, वो एप्लीकेशन आपको हेल्प कर रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए. सो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजर. सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी एक यूजर होगा database management system. The last two, which will be the sophisticated user and the database administrator, and database administrator in a whole, that will be discussing in the next class. Okay, after discussing these two things, SQL and the user, now we'll be ready to, after in the third, इसके बाद वाला जो lecture होगा, which will be I guess on Monday के दिन आप actual जो आपका diagram था, वो आप diagram को cover करेंगे, and we'll finally end with the first module. Is it clear? Yes, sir. Okay. Does anybody has any doubt? किसी को कुछ पूछना है? Anything that you want to ask? Nobody has any doubt? किसी को कुछ नहीं पूछना है? सारे डाउट क्लियर हैं? You guys are following it up? कुछ भी अभी तक प्रॉब्लम हो रहा है डेटाबेस समझने में? Feel free to give me any suggestion. अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा है, आप बोल सकते हो. जावा में या DBMS में. We have still got 2 minutes left. If you have any problem in facing it, you can tell me right now.